Hello students. So today our topic is catalyst and catalysis. Catalyst कोई नवा word नहीं है. You have heard about it in previous classes. Catalyst क्या ਹੁੰਦਾ? Catalyst ਉਹ substance ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ rate of reaction ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ? Alter ਕਰ ਸਕਦਾ. Alter ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ? Change ਕਰ ਸਕਦਾ. ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ. ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੀ ਕਿਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ? ਦੈਟ ਕੈਟਲਿਸਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਬਸਟੈਂਸ which alter the rate of reaction without being consumed in the reaction 'ਚ consume ਹੋਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਇਹ rate of reaction ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ. that are called catalyst. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਤੇ ਜਿਸ ਫਿਨੋਮੀਨਾ 'ਚ the phenomena of increasing the rate of reaction using catalyst is called catalysis. ठीक है, तो catalysis क्या हो गया? it is the phenomenon of increasing rate of reaction by the use of catalyst. So that is called catalysis. So hope you are clear with catalyst and catalysis. Catalyst क्या ਹੁੰਦੇ? Catalyst ਉਹ substances ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ reaction ਦੀ rate ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ? Speed, rate means speed ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ? ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ KClO3 ਹੈ. KClO3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਟੂ KCl ਐਂਡ O2, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਹੈ. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ. 653 to 873 ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MnO2 ਮੈਗਨੀਜ਼ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 470 to 633, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ MnO2 ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ. ਤਾਂ ਕਰਕੇ MnO2 ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਕੈਟਲਿਸਟ. ਕਲੀਅਰ? ਤੇ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਇਨ ਵਿਚ the rate of reaction is increased by the use of catalyst. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ catalysis. Clear? Now next is positive and negative catalyst. Positive ਤੇ negative catalyst क्या ਹੁੰਦੇ? Positive catalyst are those which increases the rate of reaction and negative catalyst are those which decreases the rate of reaction. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਵਿਚ ਆਲਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਲਟਰ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ? ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ. ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ, ਇਫ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ increases the rate of reaction, अगर वो rate of reaction ਨੂੰ increase करदा, then the catalyst is called positive catalyst. ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਹਾਂਗੇ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਹਾਂਗੇ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MnO2 ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ. ਇਹ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ. then it should be considered as a positive catalyst. ठीक है. नेक्स्ट इज नेगेटिव कैटलिस्ट. नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होएगा? नेगेटिव कैटलिस्ट वो होएगा जिहड़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. सो इफ अ कैटलिस्ट डिक्रीजेस द rate of reaction, it is called negative
catalyst. Clear? For example, we have an example of hydrogen peroxide H2O2. It decomposes as H2O plus O2. ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਿਸਰੀਨ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਲਿਸਰੀਨ ਹੈ that is acting as a negative catalyst। ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਸੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ऑटो कैटालिसिस या और ऑटो कैटालिस्ट। हुण ऑटो कैटालिस्ट क्या होंगे, कई बार कई रिएक्शनस दे विच जिहड़ा प्रोडक्ट बनदा ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਹਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਐਜ਼ ਅ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ क्या हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो KMnO4 plus oxalic acid in the presence of H2SO4, acidic होंगी है oxidation। It will give you MnSO4 plus K2SO4 plus CO2 plus H2। दिस इज़ अ रिएक्शन। ये रिएक्शन शुरुआत दे विच स्लो होंदा बट फिर फास्ट हो जाता। वाई, बिकॉज इत्थे MnSO4 है जिहड़ा उहदे विच Mn2 पॉजिटिव स्टेट दे विच है। इट इज़ एक्टिंग एज ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट किहड़े हुंदे, जिहड़े रिएक्शनस दे विच प्रोडक्ट जिहड़े है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर लग पैंदे, उन्हां नूं कहंदे ऑटो कैटलिस्ट। ते जिन्हां रिएक्शनस दे विच एक फिनोमिना हुंदा है तां दैट इज़ कॉल्ड ऑटो कैटालिसिस। सो क्या डेफिनेशन बन जाती, दैट इन सम रिएक्शंस one of the product acts as catalyst is called autocatalyst, and reactions involving such phenomenon is called ऑटो कैटालिसिस। ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट योर ऑटो कैटालिसिस और ऑटो कैटालिस्ट। नेक्स्ट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे हैगे उहदे बारे असीं डिस्कस करांगे। द फर्स्ट वन इज़ कि कैटलिस्ट जिहड़े है वो रिएक्शन के दौरान हो सकता कि थोड़ा बहुत फिजिकल चेंज जिहड़ा उन्हां विच आवे, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो सानू एज सच ही क्या मिल जूंगे, वापस मिल जूंगे। तो असीं लिख सकते कैटलिस्ट मे अंडरगो एनी रिएक्शन ड्यूरिंग द chemical reaction, but at the end of the reaction it is recovered as such। as such ही सानू बाद चो क्या हो जाते, रिकवर हो जाते। मतलब जिन्ना तुसी पाया था, जिद्दां पाया था उदा ही थानू क्या मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कैटलिस्ट जिहड़ा है वो रिएक्शन नू स्पीड अप कर सकता, मे स्पीड अप द रिएक्शन नू स्पीड अप करेगा। मतलब उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेगा, इनक्रीज करेगा, बट इट विल नॉट शिफ्ट द डायरैक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तुसीं 11th क्लास च भी कीता वा कि ये जिहड़ा है इक्विलिब्रियम नू किसी डायरैक्शन च शिफ्ट नहीं करता। शिफ्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तुसीं उहदे विच पढ़िया वा कि जिहड़े कैटलिस्ट होंदे वो इक्विलिब्रियम नू डिस्टर्ब नहीं करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी दैट दे आर हाईली स्पैसिफिक इन
नेचर। कैटलिस्ट जिहड़े हुंदे ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੂਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी that it does not change the enthalpy change of the reaction, ठीक है। it does not change the enthalpy change delta E, delta H, internal energy delta U, delta S or delta G of the reaction। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ these are the characteristics of catalyst। Now the next topic is promoters and poisons। promoters and poisons। firstly we will discuss about promoters क्या होंगे। promoters क्या होंगे? promoters ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ कैटलिस्ट नहीं होंगे, बट ये कुछ है जे सबसटांस होंगे ਜਿਹੜੇ कैटलिस्ट की एफिशिएंसी ਨੂੰ क्या कर सकते, इनक्रीज कर सकते। मीनस ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी ਨੂੰ प्रमोट करते, इनहांस करते हैगे। सो दीज आर कॉल्ड प्रमोटर्स। एक गल ध्यान रखनी, दीज आर नॉट कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट नहीं होंगे हैगे, बट ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी ਨੂੰ क्या कर सकते, इनक्रीज कर सकते, ठीक है। इस करके इन्हों कैटालिटिक एक्टिवेटर्स भी कहा जाता। सो प्रमोटर्स क्या हो गए? प्रमोटर्स आर द सबसटांसिस which increases the activity of catalyst। कैटलिस्ट की एक्टिविटी या एफिशिएंसी ਨੂੰ क्या कर रहे, इनक्रीज कर रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो N2 + 3H2 ये रिएक्शन तुसी काफ़ी बार पढ़िया, 2NH3। दिस इज द रिएक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनीया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਹੈ दैट इज़ एक्टिंग एज कैटलिस्ट। ये आयरन इत्थे कैटलिस्ट का काम करता, तो आयरन के नाल मोलिबडेनियम भी ऐड किया जाता। मोलिबडेनियम हेयर एक्टिंग एज प्रमोटर। मोलिबडेनियम इत्थे काहदा काम कर रहा, प्रमोटर का काम कर रहा। तो आयरन का काम क्या है, इस रिएक्शन की स्पीड को इनक्रीज करना, तो प्रमोटर यानी कि मोलिबडेनियम का काम क्या हो गया, इस रिएक्शन की, इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को होर ज़्यादा इनक्रीज करना। हुण पॉइजनस क्या हो गए? पॉइजनस का मतलब इत्थे जहर नहीं है, पर यह कैटलिस्ट वास्ते जहर का काम कर सकते। पॉइजन जिहड़े हुंदे वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते, डिक्रीज करते, घटाते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, दीज आर द सबसटांसिस विच डिक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। मतलब जिहड़ा कैटलिस्ट स्पीड रिएक्शन की वधा रहा, ये उहदी स्पीड नूं ज़्यादा इनक्रीज नहीं करन दोगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा हैबर प्रोसैस का पिछे असीं रिएक्शन किया, उहदे विच H2S गैस या कार्बन मोनोऑक्साइड जिहड़ी है वो पॉइजन के तौर पर काम करती। इन हैबर्स प्रोसैस दैट इज़ N2 + 3H2 विल गिव यू 2NH3। इत्थे असीं क्या यूज़ किया एज अ कैटलिस्ट, आयरन, ठीक है। इहदे विच कार्बन मोनोऑक्साइड हैज़ टू बी रिमूव्ड, वाई, बिकॉज इट एक्ट एज पॉइजन। किहदे वास्ते? फॉर कैटलिस्ट। इत्थे कैटलिस्ट क्या है, आयरन, ठीक है। सो इस तरह कई रिएक्शनस दे विच कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ सबसटांसिस होंगे ਜਿਹੜੇ कि एज अ कैटलिस्ट काम सॉरी एज अ पॉइजन काम करते, यानी कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। सॉरी ਜਿਹੜੇ कैटलिस्ट की एक्टिविटी है उन्होंने डिक्रीज करते। नाउ नैक्सट आर टॉपिक इज क्लासीफिकेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की क्लासीफिकेशन बारे असीं गल करांगे। On the basis of classification, they are divided into two categories. One is called homogeneous catalysis or homogeneous catalyst. Other one is heterogeneous catalyst. We will discuss one by one.
Firstly, we will discuss about homogeneous catalysis. Homogeneous, homo means same. जिन्हां रिएक्शनस दे विच तुहाडा कैटलिस्ट ते रिएक्टेंट दोने सेम फिजिकल स्टेट दे विच या सेम फेज दे विच होण, दैट आर कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट. ठीक है. व्हेन द कैटलिस्ट is present in the same physical state as of reactants. ठीक है. रिएक्टेंट्स ते कैटलिस्ट दोनों की फिजिकल स्टेट क्या होवे, सेम होवे, तो असी कहंदे कि वो कैटलिस्ट क्या है, द कैटलिस्ट इज कॉल्ड homogeneous catalyst. And the phenomena is called homogeneous catalysis. ठीक है. तो जदों होमो मीनस क्या होंदा, सेम. जदों साडा कैटलिस्ट ते रिएक्टेंट सारे सेम फिजिकल स्टेट दे विच होण, तद असीं उन्हां नूं क्या कहंदे हैगे कि वो किहड़ी कैटालिसिस है, होमोजीनियस कैटालिसिस है. फॉर एग्जांपल SO2 + O2 दैट विल गिव यू SO3. यही रिएक्शन है साडा. ठीक है. इस रिएक्शन दे विच NO इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. ते वो किहड़ी स्टेट च है, गैस च है. सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसीय स्टेट च है, ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट च है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसीय स्टेट च है. हुण इहदे विच देखो NO साडा क्या है, कैटलिस्ट है. साडा कैटलिस्ट ते साडे रिएक्टेंट वो सारे किहड़ी स्टेट च है, सेम फिजिकल स्टेट च है, गैसिस च है. तद असीं उन्हां नूं क्या कहंदे हैगे, होमोजीनियस कैटालिसिस कहंदे. होर एग्जांपल देखो, होर एग्जांपल च CO + O2 दैट विल गिव यू CO2. ठीक है. इस रिएक्शन च NO इज अगेन एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट. ये किहड़ी स्टेट च है, गैसीय स्टेट च. ऑक्सीजन भी गैसीय स्टेट च है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसीय स्टेट दे विच है. तो सारे तुहाडे रिएक्टेंट ते कैटलिस्ट दोने ही किहड़ी फिजिकल स्टेट दे विच है, गैसीयस दे विच, सेम फिजिकल स्टेट च है. दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज होमोजीनियस कैटालिसिस. नैक्सट लैट्स डिस्कस कि होमोजीनियस कैटालिसिस दे विच जिहड़ा कैटलिस्ट है वो काम किद्दां करदा. जिहड़ी होमोजीनियस कैटालिसिस दी थ्योरी है दैट इज़ बेस्ड अपॉन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन. इहदे विच क्या हुंदा हैगा, इंटरमीडिएट बनदा. वो इंटरमीडिएट जिहड़ा है फिर फर्दर काहदे विच चेंज हुंदा हैगा, प्रोडक्ट दे विच चेंज हुंदा. मीनस इन दिस थ्योरी ठीक है, कैटलिस्ट फॉर्म्स इंटरमीडिएट with one of the reactant. The intermediate being unstable changes to product. वो प्रोडक्ट दे विच चेंज हो जाता. ठीक है. सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस. असी एक एग्जाम्पल दे नाल इहनूं समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को दो रिएक्टेंट्स है A एंड B दैट आर चेंजिस टू AB. इत्थे कैटलिस्ट का काम कर रहा X इत्थे क्या है, कैटलिस्ट है. हुण मान लो कि कैटलिस्ट दी ते A ते B तिन्हां दी फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है. हुण इहदे विच क्या होएगा, स्टैप 1 च मान लो कि A जिहड़ा है वो पहला किहदे नाल रिएक्ट करेगा, X नाल. A साडा इत्थे क्या है, रिएक्टेंट है, X इत्थे क्या है, कैटलिस्ट है. ठीक है. ये दोनों रिएक्ट करके मान लो इन्हें क्या बना लिया, AX. इट इज़ योर इंटरमीडिएट. फर्दर ये इंटरमीडिएट स्टैप 2 दे विच दूजे रिएक्टेंट नाल रिएक्ट करेगा तो क्या बना जाएगा साडे को, प्रोडक्ट. तो कैटलिस्ट सानू एज सच्ची वापस मिल गया. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ दिस स्टैप टेक प्लेस. हुण इहदे विच एक गल नोट करने वाली है कि जदों रिएक्टेंट सेम फिजिकल स्टेट दे विच हुंदे तो उन्हां दा आपस दे विच रिएक्ट करना जिहड़ा है वो आसान हो जाता. तां करके यह इंटरमीडिएट कंपाउंड जिहड़ा है फॉर्म करते हैं. असीं एक दूजी एग्जाम्पल लैके देखते हैं. एग्जाम्पल इज 2SO2 + O2 दैट विल गिव यू SO3.
3 ਇਹ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਸੀਅਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ NO ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਕੈਟਲਿਸਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਸਟੈਪ 1 'ਚ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ NO, ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਆ ਬਣਾ ਰਿਹਾ NO2। ਹੁਣ NO2 ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਵਰਆਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ NO2 ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਟੈਪ 2 'ਚ ਕਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਟੈਪ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ NO2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾਲ SO2 ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ SO3 ਪਲੱਸ NO। ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ NO ਸਾਡਾ ਕਿਆ ਹੈ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੈਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਆ ਬਣਾਏਗਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਫਰਦਰ ਦੂਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਟਲਿਸਟ ਐਜ਼ ਸੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ। ਹੈਟਰੋਜੀਨੀਅਸ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।